Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with the second chapter in political science. The different chapters that we have completed, now we are heading towards the completion of this next chapter for your forthcoming examinations. Yes, your unit test is round the corner. Then you have the midterms. Before that, we need to complete this chapter. Important chapter. Take it as an important chapter, not only from the political science point of view, but from the GK point of view also. GK, yes, children. General awareness, general knowledge, constitution, one of the very important topics for all the competitive examinations. You are expected to know each and everything about your constitution. That's why this chapter has been introduced in class 9. You might be reading about constitution in the previous classes also. In the previous classes, you have read about constitution, but that was just an introduction. But here, now we are seeing constitution in a larger aspect. Till now, the constitution that we have done, we have talked about the making of, I'm sorry children. Till now, what we have done is we have talked about the making of constitution in South Africa. Just see, what did we see? What did we understand? We saw the struggle of Nelson Mandela. We saw the struggle of common people there. How much they have struggled. And so many people have laid down their lives. Believe me, children, making constitution and implementing the constitution is not an easy task. It's a big task. If it is done properly, if it is done smoothly, that's an accolade for the country. That's a great thing for the country. So South Africa, where this has happened, same way we are also talking about the making of constitution for India was not an easy task. Making constitution for a big country. Got it? Like India. Was not an easy task. Big Herculean task. इस तरह के टास्क को ना हरक्यूलियन कहते हैं. एक पहले हम लोग जब बच्चे थे ना, आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, देखा है कि नहीं देखा है. देयर वाज वन कॉमिक बुक आती थी जिसमें हरक्यूलिस, एक कॉमिक सीरीज ऑल्सो यूज टू कम ऑन द टेलीविजन, दूरदर्शन पे आता था व्हेन वी वर हरक्यूलिस एंड द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स. तो दिस वे हरक्यूलिस वाज अ पर्सन हु कैन डू एनी वर्क. लेकिन कोई भी काम वो छोड़ते नहीं थे. ही वॉज अ पर्सन विथ लॉट ऑफ एनर्जी एंड ही कैन डू एनी टास्क एंड ही कैन कैरी ऑन एनी वर्क. इसलिए उसको हरक्यूलिस कहा जाता था. एंड एनी बिग टास्क दैट ही यूज्ड टू कंप्लीट वाज कॉल्ड एज हरक्यूलियन टास्क. कोई नहीं कर सकता है इतना बड़ा काम, तो कौन कर सकता है? इट कैन बी डन ओनली बाय हरक्यूलिस. गॉट इट? तो इट वाज जस्ट, इट केम टू माय माइंड, आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू. एंड अब आपको पता ही है, इंडिया में वॉट एवर इंसिडेंट्स हैड हैपेंड, इंडिया वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन. इसको, इस स्टेटमेंट को समझो, दैट इंडिया वॉज चेंजिंग फ्रॉम अ स्टेटस ऑफ subject to citizen. Subject, who are the subject? Please understand. King's rule was there. राजा जो होती है उसके क्या होते हैं? प्रजा होते हैं. For the king there are the subjects. राजा, प्रजा. एंड फॉर दी डेमोक्रेसी, यहां से क्या हो रहा था? प्रजा से लोग क्या बन रहे थे? सिटीजन.
ठीक है, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं इस देश का एक नागरिक। नागरिक वाला कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, पहले क्या था, प्रजा वाला कॉन्सेप्ट था। दैट इज, प्रजा को सब्जेक्ट कहा जाता है। किंग had always ruled over the subjects, and now from subjects people were turning to citizen, नागरिक हो रहे थे, वोटिंग राइट मिल रहा था, they can take the decisions on their own, they can decide their future, कौन उनके लिए भला कर सकता है, कौन उनका बुरा सोच सकता है, बुरे लोगों से दूर रहना है। All these things were playing a very important role in making of India and further framing of constitution. Got it? Please try to understand, this is very important. And India had already experienced the partition. Country was born through a partition on the basis of religious differences. Country was born after partition. Partition आपको पता ही है क्यों हुआ था, on the basis of religious difference. Of course, it was on the basis of religion. धर्म के नाम पे ही एक दूसरे से लोग बट गए थे। तो ये religious difference जो था, this has led India towards a very bad kind of a society and traumatic experience. It was a traumatic experience. ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, दोनों तरफ के लोगों को शॉक मिला था। Both side people were in the state of shock. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in the partition. 10 लाख लोग, at least 10 lakh people were killed as a result of partition on both sides. Total milake. And you know, when this kind of a mass killing happens, इस तरह का जब इतने लोगों का मर्डर होता है, इतने लोगों को मार दिया जाता है, एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसा नहीं कि बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या इस तरह की चीजें। पीपल आर आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ इग्नोरेंस, एक दूसरे को मार रहे हैं, अपने भाई बंधुओं का नुकसान कर रहे हैं। When such an incident is happening, जब इस तरह की हरकत होती है तो उसको कहा जाता है होलोकॉस्ट। This kind of a killing, this kind of a killing is called as होलोकॉस्ट। हर जगह इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं। होलोकॉस्ट अभी आपने वी विल बी स्टडिंग हिस्ट्री में, जर्मनी में दिस हैज हैपेंड, वेयर लैक्स ऑफ पीपल वेर किल्ड, लाखों लोग मारे गए थे। बिलीव मी चिल्ड्रन, लाखों अगर मैं बोल रही हूं, दैट मीन्स देयर वेर लैक्स ऑफ पीपल हु वेर किल्ड एंड 10 lakh people were killed from both the sides. There was another problem. क्या हो गया था, ब्रिटिश तो चले गए थे, British were very, annoyed that they had to leave India. So they have left India in a condition जहां पे कि the rulers of the princely state needed to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. The princely states, देखो कितना बड़ा गेम खेल के गए ना, अभी आई विल बी डिस्कसिंग इट, वेयर गिवन द पावर टू डिसाइड दैट दे वांटेड टू बी with India or Pakistan,
और इंडिपेंडेंट, कि वी डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का हम पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, हम अपना कानून खुद बनाएंगे, अपने तरीके से अपना राज चलाएंगे, इंडिया के साथ मर्ज होने का मतलब नहीं है, ठीक है। दे डिड नॉट वांट टू गेट मर्ज्ड विथ इंडिया एंड एक ही कंट्री में। अब आप ये सोचो, जैसे देयर वाज हैदराबाद, देयर वाज कश्मीर, there was the rulers of Rajasthan, then there were the rulers of Madhya Pradesh, Sindhyas, Holkars, Bhosles, you know, actually ये वो rulers थे, Mysore, these were the people who were very loyal to the Britishers. Britishers की इन्होंने बहुत सेवा की थी, ब्रिटिशर्स की इन्होंने बहुत चमचागिरी की थी, तो ब्रिटिशर्स जाते जाते इनको ये तोहफा देके जाना चाहते थे। They wanted to give this gift to the Indian rulers कि अपने से डिसाइड कर लो कि आपको अपना राजपाट चलाना है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनना है। कश्मीर में प्रॉब्लम ये थी, द कश्मीर रूलर वाज सेड, बिकॉज कश्मीर वाज एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कश्मीर के रूलर को उन्होंने कह दिया आप डिसाइड कर लीजिए आपको पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिया के साथ रहना है। तो the then ruler Hari Singh, he signed the contract with India, जवाहरलाल नेहरू के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, I want to be a part of India. Kashmir has been from the very beginning an integral part of India. So he signed the agreement. वहीं से तो लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तान सेड कि कश्मीर हमको चाहिए था, आपने ले लिया, जबरदस्ती हरी सिंह से साइन करा लिया। The ruler said that there was no जबरदस्ती at all. He has done it on his own. He wanted to be an integral, he wanted to be a part of the Indian system. So these kind of allegations they were not ready to accept. यहां से लड़ाई शुरू हो गई। ये तो इंडिया पाकिस्तान की कहानी अलग है, ये मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अब ये प्रिंसली स्टेट्स, एक ही कंट्री में क्या 4 तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं? Can there be 4 kinds of constitution? Can there be 4 kinds of rulers? Can there be a visa and passport for going from one place to the other place in the own country? अपने कंट्री में एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उसके लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़े, क्या मजाक है? बट देन यही ऐसा ही मजाक हुआ था। This kind of a mockery was made. This kind of a fun situation was there. और इसको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो they wanted to deal it very strictly. Some strict action was to be taken because princely states, some of the princely states, भाई राजा अपना राज क्यों छोड़ना चाहेंगे? Why will the kings want to leave their kingship and their rule and their power? उनको तो हमेशा अपना पावर बना के रखना है, उनको हमेशा अपना पावर दिखा के रखना है, तो राजाओं को तो बहुत प्रॉब्लम थी। यहां भी ब्रिटिशर्स हैव प्लेड अ वेरी डर्टी गेम। बिलीव मी चिल्ड्रन, इनका जब हम हिस्ट्री व्हेन वी गो इन डिटेल इन द हिस्ट्री, then we come to know about the nasty things that have been done by the Britishers in India. इंडिया में ब्रिटिशर्स जो करके गए वो ना, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। बहुत ही गलत जगह पे, बहुत ही गलत तरीके से इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ के ये जो गए, दे हैव पुट इंडिया इनटू अ वेरी टफ सिचुएशन। So, merger of these princely states was a difficult task. Please understand, the merger of these princely states was a tough task. बहुत कठिन कार्य था, ठीक है। मनमानी ये करना चाह रहे थे, अपने हिसाब से अपनी चीजों को डील करना चाह रहे थे। एंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री वाज नॉट वेरी सर्टेन,
क्या होगा, कैसे होगा. एंड मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंजाइटीज, बहुत ही घबराए हुए थे. They were very anxious about the present and the future of the country. That time country was in a very bad shape. So makers of constitution were fearful about the present and future of the country. आज के दिन में कैसा ये चल रहा है, फ्यूचर में आने वाले दिनों में ये क्या होगा, कैसे होगा. तो दिस वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क in front of the people who were to make the constitution. इसमें क्या हुआ, अब कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ मूव करते हैं. देयर हैज टू बी अ पाथ टुवर्ड्स मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. द पाथ टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, अ बिग टास्क, अ टफ टास्क, लेकिन बनाना तो था. कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कंट्री कैसे रहेगा? How will the country sustain without constitution? So, this was a tough task, the path to constitution. Got it? The makers of the constitution has to think about all the angles. सबके साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए. So, keeping these things in mind, constitution बनाने का काम शुरू हुआ. There was one big advantage, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा मिला. There was a big advantage in front of constitution makers. ठीक है, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके पास एक फायदा था. वो क्या था? साउथ अफ्रीका की तरह दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस. उनको किसी के साथ बैठ के बातचीत करके सॉल्यूशन नहीं निकालना था. सारे लोग, आई मीन एवरीबडी वाज सेलिंग इन द सेम बोट. काले गोरे का भेदभाव नहीं था. प्लीज अंडरस्टैंड. What is the point put here is that the differences of black and white did not exist. वहां तो सबको बैठ के साथ में, क्योंकि ब्लैक्स व्हाइट्स को देखते थे, सोचते थे इन लोगों ने बड़ा अत्याचार किया हमारे ऊपर, बड़ा सताया है, इनको तो हम खूब बताएंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. यहाँ पे ऐसा नहीं था. इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स तो चले गए थे. ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स भी साथ में बैठे हैं. जिनसे शिकायतें थी इंडियंस को वो तो चले गए, अब तो सारे के सारे इंडियंस हैं. So there was, they did not have to come to a consensus about what a democratic India should look like. They did not have to work for consensus. Consensus means सबसे पूछ पाछ के ही सारा काम करना है. As the goal for India was very clear in everybody's mind. सबके दिमाग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जितना भी क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल भी क्लियर थे. मच ऑफ दिस कॉन्सेंसस हैड इवॉल्व. सारे लोगों को भाई इंडिया को सुखी देखना है, इंडिया के हैप्पीनेस के लिए. एवरीबडी had gathered there for India's benefit, for India's bright future and for the bright future of the common people. आम आदमी के लिए सारे लोग मिलजुल के ही काम करना चाह रहे थे. यहाँ पे ये एक फायदा था. This was a benefit. Okay, so our national movement खाली हमारा स्ट्रगल नहीं था. स्ट्रगल, it was against a foreign rule.
It was also a struggle to rejuvenate our country. Struggle in India was not only against foreign rulers, but for the betterment of the country. देश का भला करना है, यही चीज लोगों के दिमाग में आराम आराम से चल रही थी कि देश को आगे लेके जाना है. एवरीबडी अब यहाँ पे वहां पे उनके यहाँ पे तो काले गोरे का लोग अपनी अपनी राइट्स के बारे में सोच रहे थे ना. ब्लैक वेयर थिंकिंग अबाउट देयर राइट्स, व्हाइट्स वेयर थिंकिंग कि अरे अरे कहीं ऐसा नहीं हो कि सारा पावर ब्लैक्स के पास चला जाए और व्हाइट्स फिर उनके सामने भीख मांगने के लिए खड़े हो जाए. या आई मीन these kind of questions were coming in the mind of the people there. And country को rejuvenate करना है, energize करना है and transform our society and politics. हमारा political system was dominated by the Britishers. So when they have gone, our political system needs to be reworked. Our political system needs to be reworked. फिर से काम करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. किसी के साथ ऐसा तो नहीं है कि कास्ट सिस्टम जो इंडियंस वांटेड टू फिनिश द कास्ट सिस्टम. अभी कास्ट सिस्टम का जो एक मुद्दा चल रहा था, पीपल वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट. एंड लेकिन देयर वेर शार्प कुछ मुद्दों पर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद द फ्रीडम विद द फ्रीडम स्ट्रगल को लेके विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया को कौन से रास्ते पे चलना चाहिए. इंडिया शुड चूज विच पाथ आफ्टर इंडिपेंडेंस. आजादी मिल गई थी, अब इंडिया का रास्ता क्या होगा ये सोचना था. एंड येट सम बेसिक आइडियाज वेर देयर. कुछ चीजें थी which had come to be accepted by almost everyone. कुछ चीजों में सबका आइडिया एक ही था कि नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले बात किसने की थी? दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन की भी तो कोई हिस्ट्री होगी ना. लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, लेकिन उसके पीछे किन किन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और ये काम कहां से शुरू हुआ. द मेजर क्वेश्चन इज एक्चुअली वेयर डिड द वर्क स्टार्ट. किस जगह से किसने शुरू किया. एंड इट हैपेंड इन 1928. अभी देखो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन वी नीड टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑल्सो. हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री समझ रहे हैं. हिस्ट्री को कम मत समझना. यस, इट इज ऑलवेज देयर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक. कहीं ना कहीं से आ ही जाता है हिस्ट्री. सो 1928 में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. सबसे पहले, उस समय तो ब्रिटिशर्स थे. इन 1928 मोतीलाल नेहरू and 8 other leaders drafted a constitution for the first time. पहली बार. Got it? सबसे पहले इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. एंड अब आप सोचो कि कितने पहले से लोगों ने काम करना शुरू किया है.
How long back the Indians have been trying to make a constitution, frame some rules and regulations for the country. हम क्यों ब्रिटिशर्स के हिसाब से सारा काम करें? Why should we walk according to the British lines, according to their wish? उनके हिसाब से सारा काम क्यों होना चाहिए? Okay? 1930 में क्या हुआ? There was a resolution at the Karachi session of the Indian National Congress and उन्होंने कहा कि इंडिया के इंडिपेंडेंस मिलना ही था. They knew it very well कि ब्रिटिशर्स को तो इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा. By all means, the Britishers have to leave India. So, what would this constitution look like? ये constitution कैसा होगा? So, 1928 में पहला काम हुआ. उसके बाद in 1931 at Karachi session, formal constitution was, क्योंकि अब एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मलाइज होना बहुत जरूरी था. That how India's constitution should look like was drafted. That how India's constitution should look like. कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन. Got it? 28, 31 कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जद्दोजहद चली रही थी. I mean, people were continuously working. The Indian leaders बैठे नहीं थे चुपचाप. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult. कुछ चीजें थी जो 1928 वाले में भी थी, 1931 वाले में भी थे. Both constitution had one thing common. One thing नहीं, I'm sorry, ये one thing नहीं कहेंगे, कुछ चीजें common थी. So we have to include here some things. Some things common, कुछ चीजें इसमें common थी, जैसे सबको वोटिंग राइट्स मिलेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. फ्रांस में देखो, रशिया में देखो, विमेन हैव नॉट गॉट द राइट टू वोट जब कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था. इंडिया में दे हैव डिसाइडेड and there are some basic values, a right to freedom and equality, right to freedom and equality, and right to protect the rights of minorities. लोअर कास्ट के लोगों के साथ भाई थोड़ा अत्याचार तो हुआ है हमारे यहाँ, तो उनके ऊपर थोड़ा सा अलग से ध्यान देने की जरूरत थी. ये सारे लोग मिलके ही ये सारी चीजें डिसाइड कर रहे थे. गॉट इट? दिस वाज डिसाइडेड. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे मेट एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. वाइल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड मेड, ये सारी चीजें right of minorities, freedom and equality, universal adult franchise has to be there, ये सबने decide कर लिया. Got it? हाँ. So here we come to the end of today's video. 1-2 lines I'll show you in the book itself. Come, let's mark it. So students, in the last class we discussed about some of the great personalities who were involved in the making of the constitutional, how they have made the constitution, what was going on in their minds, how did they formalize it. This is all what that we have done here. T. Krishnamachari, one of the very important Congress leaders, and later he became the finance minister. कुछ चीज़ें जो हैं जो इस चैप्टर में हैं
Children, again I am saying you from GK point of view, it's extremely important. So don't miss see to it that you are completing all these. And today we have discussed about the Constituent Assembly. People met here and they sat together to frame a constitution, a formal constitution for the country. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी इसमें, two things that you needed to note down today is 1928 and 1931. ये दोनों ईयर याद रखिएगा जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड. ओके चिल्ड्रन, so here we come to the end of today's video. We'll meet in the next video. Till then, thank you so much and all the best to you.